The reasons have contributed to the decline of JKCL, and presently all the three plants are closed since 2019. The main reasons are reflected as under: below par productivity, per employees ratio, poor power supply leading to regular interruptions in the operations causing a huge loss in the production of the plant. Third, production losses due to non-availability of sufficient working capital and lack of proper maintenance causing regular breakdown to the plant and machinery. Unforeseen factors like September 2014, flood unrest of 2016, lockdown due to COVID-19 2019 in the valley adversely affected the performance of the company and inflicted huge loss as complete operation of the plant were halted for a reasonable long time. Company has been burdened by its own liabilities on account of salaries, bill raised by the contractors and various departments, CP fund of employees, GST liabilities, etc. The profit and loss statement from 2008-9 to 2019-20 is Annexure A. Presently, the JKCL is under process of disinvestment. In view of non-viability of revival of JKCL, the Administrative Council of Union Territory of J&K, Wide Administrative Council Decision Number 113/15/2021 dated 19/10/2021 under the chairmanship of Lieutenant Governor gave in principle approval for complete sale of JKCL and its assets owned as is where is basis through strategic investment and exploration of options for e-auction from qualified bidders. Annexure B. Wide Order Number 41-J&K PCB of 2021 dated 22/1/21, the J&K PCC imposed as moratorium on establishment and registration of new units of air polluting industry in Crew, District Pulwama and Khonmo District, Srinagar of Kashmir Division for a period of 2 years. Further, the same was reviewed by the committee on 20 December 2023 and wide its decision dated 1/1/2024 resolved that a moratorium on establishment of new units shall remain in force only in respect of cement plants, stone crushers, brick kilns, mining and hot mix plants till such time the annual average air quality index falls below 100 or comprehensive environmental pollution index scores falls below 60. Necessary steps shall be taken to regularly monitor the amendment air quality of Crew and Khonmo area, Annexure C and V. The retirement/pensionary benefits for the retired employees of JKCL have been worked out and projected in the revised budgetary provision for the current financial year 2024-25. The Sixth Pay Commission benefits have been implemented for the employees due to the poor financial condition and the decision of the disinvestment of JKCL taken by Administrative Council Decision Number 113/15/2021 dated 19/10/21. The Seventh Pay Commission could not be implemented. Part D, as a policy decision, the Administrative Council, wide the decision number so and so approved the dismissment of JKCL. जनाब इस पस मंज़र क्या सवाल का पस मंज़र ये है कि जो हमारा इलाका है क्रू इलाका है वो धीरे धीरे भोपाल बनता जा रहा है कश्मीर का। जब डस्ट पोल्यूशन की परेशानी है तो सारा जो हमारी जो खेती बाड़ी है जो ज़मीन है वो बिल्कुल उसमें कोई बुआदी की हिम्मत नहीं करता है, सैफरान चला गया। तब इस सारे पस मंज़र में जनाब ये है कि फैसला किया गया है डिसइन्वेस्टमेंट का जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन साथ ही वहाँ पर हमारे मुतालबे पर एक मॉरिटोरियम में पाबंदी लगाई गई है कुछ टाइप की इंडस्ट्रीज़ में जिसमें सीमेंट भी शामिल है। तो क्या ये जो डिसइन्वेस्टमेंट जो फैसला किया गया इस सरकार से पहले क्या वो मौखर किया जाएगा? क्योंकि देखना कि डिसइन्वेस्ट को हम नहीं डिवोर्स कर सके, हम नहीं दूर रख सके जनाब। जो वहाँ पर एक बैन लगी है कि ये इंडस्ट्रीज़ नहीं हुई, आप डिसइन्वेस्ट करेंगे तो किसी और को देंगे क्योंकि वहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी है डस्ट की
जो इमिशंस की जनाब कैरिंग कैपेसिटी इलाके की, वो कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल ओवरफ्लो कर गई है। अब हम नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते कोई और पोल्यूशन मेकिंग इंडस्ट्री वहाँ पर लगी। जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस के बाद क्या आप जनाब उसको मौखर करिए, ताकि ये पहले देखें कि क्या इसी इंडस्ट्री को आप देंगे, आप किसी को देंगे जो पोल्यूटिंग होगा। तो दूसरी बात यह है जनाब, क्या आप जो वहाँ के लोग हैं उनको, अवाम है जो काश्तकार है, क्या उनको आप कंपनसेट करेंगे अंडर जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है पोल्यूटर टू पे, उसके तहत। दूसरी बात यह है जनाब, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे 400 के आसपास, उनको क्या है डिप्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट्स में, लेकिन उनका जो रिटायर हुए थे उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स आज तक वागुजार नहीं किए गए। अब ये दिया गया एश्योरेंस, ये तो बड़ा इत्मीनान की बात है कि नहीं अब इसको उसका किया जाएगा इस वाले में, जिस बजट में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है। लेकिन 7th पे कमीशन अभी भी उनको डिनाई किया जा रहा है, जबकि उनके साथी मुलाजमीन जहाँ पर उनको डिप्लॉय किया गया है वहाँ पर वो 7th पे कमीशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको डिनाई किया जा रहा है। इसके अलावा जनाब 51 के करीब जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो डेलीवेजर्स थे, उनका वही स्टेटस है जो बाकी डेलीवेजर्स का, उनको आज तक डिप्लॉय नहीं किया गया है। तो क्या है, पहले जब मैं गुजारिश करूंगा क्या डिसबर्समेंट आप मौखर करेंगे, ताकि नए सिरे से स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा करके फिर देखेंगे आप क्या ये करें या ना करें, क्योंकि जो आपने बैन लगाई उस बैन के पस मंजर। जहाँ तक JKCL का ताल्लुक है, ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये उसमें हुआ, और जो इसका अथराइज कैपिटल था वो 60 करोड़ था, और वक्त के साथ साथ ये अपना काम किया। और इसके 2 प्लांट, एक हेरू में 600 TPD का और दूसरा ग्राइंडिंग यूनिट एट सांबा 300 TPD का शुरू हुआ था। और लेकिन आज की अब अलग अलग वक्त पे इसको देखा गया, लेकिन उसके बाद जब ये पीछे 2021 में ये डिसीज़न हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक डिसीज़न लिया कि इसको सेल आउट किया जाए। और क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक़ है JKCL का, इसका अपने ऊपर जो इसका बोझ है, चाहे वो सैलरीज का है, चाहे वो जो बिल्स हैं, CP फंड वगैरह जो भी हैं, काफ़ी सारा इस पे हो गया, और ये कंपनी आज काफ़ी सारे घाटे में है। लेकिन है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है, अब नई सरकार बनी है, और ऑनरेबल मेंबर साहब का, क्योंकि इनसे मेरे काफ़ी दफ़ा इस सिलसिले में बात भी हुई, और ऑनरेबल CM साहब से भी बात हुई, लेकिन है कि फ़िलहाल हम इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है, इनके कंसर्न जेन्युइन हैं कि उन लोगों को जो मुलाजम थे उनका क्या हुआ, उनको जो सैलरी थी वो नहीं मिली, 7th पे कमीशन जो उनको नहीं मिला, काफ़ी सारे इशूज़ इन्होंने रेज़ किए हैं। लेकिन है कि हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और देखेंगे जो बेस्ट पॉसिबल होगा क्या हो सकता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको इतना ही कह सकता हूँ कि इसका MLA साहब से बैठ के हम कुछ ना कुछ देखेंगे क्या हो सकता है सकती है, जो वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक हो, उसी के बारे में उसको नजर रखा जाए। आगे आपका क्वेश्चन नहीं कह सकते। एडवोकेट रियाज अहमद खान साहब।